گھر کا پورا کنٹرول میری وائف کے ہاتھ میں رہے، وہ مجھ کو پرچی بنا کر دے، اس کے گھر میں وائف پاور لیس، بیویاں عورتیں یعنی ان کی وائف کے کنٹرول میں سب کچھ ہوتا ہے، سیدھا سورگ میں جنت میں پہنچائے گا۔ بولو سب سبحان اللہ۔ وہ بھی لیڈیز ہے، وہ بھی ممبر کا اور گھر کا وہ بھی ایک پارٹ ہے، وہ اگر بیمار ہو گئی ہے چند دنوں کے لیے تو کیا اس کو ہم اپنے روم سے نکال کر اور کسی اور روم میں بھیج دیں؟ رکھتے ہیں نا، حمیرہ، احمر، اس کا معنی ریڈ، لال۔ ریڈ تو نام نہیں رکھتے عام طور پہ میری جانکاری کے مطابق، ریڈ سے ملا جلا جو کلر ہے پنک، تو پیار سے کوئی اپنی بچی کا نام پنکی رکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کو بھی پیار سے پکارتے تھے یا حمیرہ، یعنی کہ آج کے شبد میں، آج کے لینگویج میں گویا کہ آپ پنکی کہہ کر پکار رہے ہیں۔ عورت بھی اس دنیا کی مخلوق ہے اور عورت کو، لیڈیز کو بھی اتنی ہی عزت، مقام، مرتبہ ملنا چاہیے جتنا مرد کو اور جینس کو ملتا ہے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ مختلف اسکول اور کالجز سے آئے ہوئے بڑے ہی قابل احترام ٹیچرز حضرات اور میری پیاری بچیوں، چونکہ میں آج اپنی بچیوں کے بیچ میں ہوں اور مجھے اصل میں ان پیاری بچیوں ہی سے بات کرنی ہے، اس لیے ایک بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لمبی نظم لکھی اور اس کا ایک شعر جو لڑکیوں سے اور عورتوں سے متعلق ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی اجازت سے وہ شعر پہلے میں سنا دوں۔ سلام اس پر کہ جس نے عورتوں کو آبرو بخشی، آبرو کے معنی عزت۔ سلام اس پر کہ جس نے عورتوں کو آبرو بخشی، گلے ناچیز کو جس نے متاع زندگی بخشی۔ اصل میں میری پیاری بچیوں، آج کا یہ پروگرام جب شروع ہوا اور قرآن کریم کی جو آیت اس نے تلاوت کی، میری روح کانپ گئی، دل میں اتر گئی وہ تلاوت۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھے ہوئے بہت سے ہمارے بچے، اگر ان کو یہ کہا جائے کہ سیرت کی مجلس ہے، سیرت کا پروگرام ہو رہا ہے، تم قرآن کی آیت تلاوت کرو، ہو سکتا ہے قل هو اللہ احد کی تلاوت کر دے، ہو سکتا ہے انا انزلنا کی تلاوت کر دے، سبح اسما یا اور کچھ پڑھ دے، لیکن قرآن میں نبی کے بارے میں جہاں اللہ نے کہا ہے کچھ، اس آیت کو سلیکٹ کر کے اور پڑھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس بچی نے دل جیت لیا، میں اس کا بھی اور آپ سب کا
اور بچی کے تمام ٹیچرز کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد چند اسٹوڈنٹس نے مل کر جو نعت نبی پڑھی، دونوں ہی نعت، چونکہ دوسری نعت عربی زبان میں تھی، آپ لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوا ہوگا، لیکن نعت بڑی اچھی تھی۔ اور پہلی جماعت اور پہلی ٹیم نے اردو لینگویج میں جو گنگنایا اور نعت پڑھی ہے، صحیح معنی میں بالکل موقع کے مطابق وہ نعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے، اللہ ان سب کو اور ترقی عطا فرمائے۔ میری پیاری بچیوں، آج 12 ربیع الاول ہے اور آج سے 1500 سال پہلے مکے کے اندر اللہ نے اپنے ایک خاص بندے کو، ایک خاص انسان کو جنم دیا۔ اس کا ڈیٹیل ایک بچی نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ میں دوہرا کر اور دوبارہ کہہ کے اپنی بات لمبی کرنا نہیں چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخری پیغمبر، آخری رسول، انتم پیغمبر اور اللہ کا دودھ اس دنیا میں جو آئے، اس ٹائم میں دنیا کے حالات کیا تھے اور انہوں نے دنیا والوں کو کیا دیا۔ 571 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور جنم کے 571 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا، اور اس ٹائم میں پوری دنیا میں اور خاص کر کے عرب کنٹری کے اندر دنیا کا کون سا پاپ ہے جو اس وقت نہیں لوگ کرتے تھے، مشکل سے بتایا جا سکتا ہے۔ پاپ کا، گناہ کا سارا کام وہاں ہوتا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا میری پیاری بچیوں، کہ اگر کسی کے گھر میں بچی کا جنم ہوتا تھا، لڑکی پیدا ہوتی تھی، تو اس کا باپ اپنی اس پیاری بچی کو اپنے ہاتھ سے گڈھا کھود کر اور اس میں دفن کر دیتا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا پاپ ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور انہوں نے اس وقت کے سچویشن کو دیکھا، حالات کو دیکھا۔ میں نے اس حال میں کئی مرتبہ اپنی بچیوں کے سامنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا، گیان کا، شکا کا، ایڈوکیشن کا دیپ جلایا، چراغ روشن کیا، اور کیسے کیا ڈیٹیل سے میں بتلایا ہوں۔ ابھی 3-4 روز پہلے جو پرانا ڈی ڈی یو جو ہاسٹل ہے، وہاں پر بھی میں نے بتلایا تھا۔ آج مجھے صرف یہ بتلانا ہے کہ اس مہان اور پیریو نبی نے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے لیڈیز کے لیے، مہیلا کے لیے، عورتوں کے لیے کیا انقلاب لایا اور کیا پریورتن اور چینجنگ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ اس لیے کہ آج میرے سامنے اصل میں میری بچیاں ہیں جن کو آگے چل کے بہت کچھ بننا ہے، بہت آگے بڑھنا ہے، اور پورے انڈیا ہی نہیں پوری دنیا میں اپنا نام روشن کرنا ہے۔ میری پیاری بچیوں، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا اور جس ٹائم میں ان کا جنم ہوا،
उस टाइम में लेडीज को इंसान भी नहीं समझा जाता था, इंसान भी नहीं समझा जाता था। एक तरह से जानवर से बदतर उनकी जिंदगी होती थी। ऐसे माहौल में, ऐसे समाज में आकर उन्होंने ऐलान किया, खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया में अगर सबसे कोई अच्छा है, दुनिया की अगर सबसे कोई अच्छी चीज हो सकती है तो वो लेडीज है, वो औरत है जिसका किरदार अच्छा हो, जिसका चाल चलन अच्छा हो, जिसका कैरेक्टर अच्छा हो। दुनिया का सबसे अच्छा इंसान और दुनिया के सबसे अच्छी चीज वो लेडीज है, वो औरत है। मेरी प्यारी बच्चियों, मैं चाहता हूं कि जरा एक तरतीब से, एक सिस्टम से मैं आप लोगों को नबी की वो बात बताऊं जो उन्होंने खास करके लेडीज, महिला और औरतों के बारे में कहा है। अगर हम देखते हैं तो ये लेडीज, उसका कई स्टेप हैं। ये मां भी है, ये वाइफ भी है और ये लड़की भी है, बहन भी है। अगर लेडीज मां है तो नबी ने मां के बारे में क्या कहा और प्रैक्टिकल नबी ने क्या करके दिखलाया। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, आपका एक दोस्त, एक फ्रेंड आता है और आकर क्वेश्चन करता है, मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रिस्पेक्टेड टीचर भी है, मैं अपने फादर का भी सम्मान करता हूं, मैं अपने बड़े भाई की भी इज्जत करता हूं, मैं अपनी मां की भी ताजीम और सम्मान करता हूं। मेरे जितने गुरु हैं, जितने बड़े हैं, मैं सबको आदर और सबको प्रणाम करूंगा। लेकिन ये बताइए कि सबसे ज्यादा मैं किसकी इज्जत करूं, किसको सम्मान दूं सबसे ज्यादा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुका। अगर सबसे ज्यादा किसी की इज्जत करनी है, सबसे ज्यादा अगर किसी को सम्मान देना है तो वो तुम्हारी मां है। पूछा, सुम्मा मन? ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे नंबर पर कौन है? उन्होंने शायद ये सोचा था कि दूसरे नंबर पर अब्बा, फादर का नाम लेंगे, लेकिन आपने फरमाया, सुम्मा उम्मुका, फिर तुम्हारी मां है। तुम अपनी मां की इज्जत करो, सम्मान करो, खिदमत करो, सेवा करो। तीसरे नंबर पर पूछा, सुम्मा मन? फिर कौन? आपने तीसरे नंबर पर भी कहा, सुम्मा उम्मुका, फिर तुम्हारी मां। 3 मर्तबा आपने मां का नाम लिया और चौथे नंबर पे जाके कहा, सुम्मा अबूका। अगर तुम अपनी मां की 3 बात मानते हो तो चौथे नंबर पर अब जाकर बाप की बात मानो और बाप का सेवा करो। यह है मां। इसी तरह से मशहूर हदीस है, इन्नल जन्नत तहत अक़दामी उम्महातिकुम। अगर तुमको जन्नत में जाना है, अगर तुम स्वर्ग में जाना चाहती हो तो मरने के बाद स्वर्ग तो मिलेगा, लेकिन वहां जाने के लिए तुम्हारे घर में जन्नत है, तुम्हारे घर में स्वर्ग है। तुम यहीं पर प्रैक्टिकल स्वर्ग में जा सकते हो और जन्नत ले सकते हो। वो क्या है? इन्नल जन्नत तहत अक़दामी उम्महातिकुम। तुम अपनी मां की सेवा करो, मां की खिदमत करो, तुमको जन्नत मिलेगी। मां के पैर के नीचे अल्लाह ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने जन्नत रखा है। ये इस्लाम हमको सिखाता है। अच्छा, नबी ने लोगों के सामने ये पेश कर दिया, लेकिन खुद उन्होंने प्रैक्टिकल कुछ करके दिखलाया या नहीं मां के बारे में? हिस्ट्री में लिखा है कि जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र, आपका एज ओनली 6 ईयर था, 6 साल की उम्र थी और आपकी मम्मी दुनिया से चली गई। आपको मां की खिदमत और सेवा करने का चांस और मौका मिला ही नहीं। लेकिन
آپ ایک مرتبہ مدینہ جا رہے تھے، مدینے کے راستے میں ممی کی قبر تھی، جا رہے تھے اور پتا چلا کہ یہاں پر میری ممی کا ڈیٹ ہوا تھا، یہاں انتقال کیا تھا اور یہ میری ماں کی قبر ہے. تو ماں کی قبر پر جا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے، آنکھ سے پانی جا رہا ہے اور ماں کے بارے میں ایسا کچھ کہا کہ آپ کے ساتھ جتنے فرینڈ تھے، جتنے ساتھی تھے، سب کے سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. آپ نے اپنی ماں کے سیوا کا تو آپ کو موقع نہیں ملا، لیکن کچھ لیڈیز ایسی تھی جس نے بچپن میں آپ کو اپنا دودھ پلایا تھا. حقیقی ماں یعنی اپنی ماں تو نہیں تھی، لیکن دودھ پلایا تھا، اور جس نے بچے کو دودھ پلایا وہ بھی ماں ہے. ان میں سے ایک حلیمہ سعدیہ کا نام ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سامان بانٹ رہے تھے، ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، لوگوں کو دے رہے تھے. اسی ٹائم میں ایک عورت، ایک لیڈیز دوڑتے ہوئے آئی، بھاگتے ہوئے آئی اور بالکل پروفٹ محمد کے قریب آ گئی. آپ نے دیکھا نظر اٹھا کے تو فوراً اپنے بدن پر جو چادر تھی اس چادر کو زمین پر بچھایا اور کہا کہ آپ اس پر بیٹھ جائیے، آپ اس پر بیٹھ جائیے. لوگوں نے کہا کہ اتنا سمانیہ اور اتنا آدرنیہ کون عورت ہے، کون لیڈیز ہے یہ؟ بعد میں پتا چلا کہ یہ وہ لیڈیز ہے جس نے بچپن میں پروفٹ محمد کو اپنا دودھ پلایا تھا. ایک اور لیڈیز کا نام آتا ہے ام ایمن. انہوں نے بھی بچپن میں آپ کو اپنا دودھ پلایا تھا. جب ماں دنیا سے چلی گئی تو آپ ام ایمن کو یا امہ، اے میری ماں کہتے تھے. یعنی دودھ پلانے والی ایک 4 گریڈ، اس وقت کے اعتبار سے 4 گریڈ کی عورت تھی، اور اس کو آپ نے، پروفٹ محمد نے اپنا ماں کہا، بار بار کہا. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کہتے تھے ام ایمن امی بعد امی، میری ماں دنیا سے چلی گئی لیکن میری ماں دنیا میں ہے، اور وہ کون ہے؟ یہ ام ایمن. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد نے پریکٹیکل اپنی ماں کی سیوا، یعنی دودھ پلانے والی ماں کی عزت، سیوا اور خدمت کر کے لوگوں کے سامنے نظیر، مثال، نمونہ، ادھارن پیش کیا. ایک وہ زمانہ تھا اور ایک اسلام کا یہ شکھا اور تعلیم ہے. اور دوسری طرف میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں، تعجب بھی ہوگا. میں ابھی کسی نے پوسٹ کیا تھا، کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا کہ یو ایس اے کے اندر ایک اسٹیٹ ہے نیو جرسی، وہاں کی ایک گرلس نے، ایک لڑکی نے کورٹ میں جا کر کیس فائل کیا. اور کیس فائل کس بارے میں کیا؟ اپنے پیرنٹس کے خلاف کیس کیا. کیا کیس کرتی ہے وہ کیس کرتی ہے کہ میرے ابا اور میری اماں نے مجھ کو دنیا میں لانے سے پہلے، میرے جنم سے پہلے پرمیشن مجھ سے کیوں نہیں لیا؟ وداؤٹ پرمیشن انہوں نے مجھ کو دنیا میں جنم کیوں دیا؟ یہ انہوں نے کورٹ میں کیس فائل کیا. میری بچیوں، وہ کہتی ہے کہ کیس فائل کرنے کا کارن یہ تھا کہ میری ممی، میرے پاپا بہت پیار سے، لاڈ سے مجھ کو اپنے گھر میں رکھتے تھے اور جو چاہیے لا کر دیتے تھے. جب میرا 18 سال کمپلیٹ ہوا اور میرا برتھ ڈے آیا، 19واں ایئر شروع ہوا، تو میرے پاپا میرے روم میں آئے اور انہوں نے آ کر مجھ کو ایک چابی دی، دروازہ لاک کھولنے کے لیے ایک چابی دی، اور کہا کہ میری بیٹی، وہ تمہارا مکان میں نے بنا دیا ہے، اور وہ مکان 1200 اسکوائر فٹ کا ہے. 1200 اسکوائر فٹ کوئی معمولی نہیں ہے. کیا بولتا ہے، بمبئی میں، دلی میں
अगर 100-150 स्क्वायर फीट भी जगह मिल जाए तो बहुत है। 1200 स्क्वायर फीट का मकान तुम्हारे लिए है, तुम जाओ और वहां जाकर रहो। वो कहती है कि मुझे बड़ा गुस्सा आया कि आज मेरा जन्मदिन था, बर्थडे था, मैं सोच रहा था कि कोई अच्छा सा गिफ्ट मेरे पापा लाकर देंगे, लेकिन वो मुझको चाबी लाकर दे रही है और कह रही है कि तुम्हारा एज 18 कंप्लीट हो गया, अब तुम अपने पैर पर खड़ी हो सकती हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा वो घर बना हुआ है, तुम वहां शिफ्ट हो जाओ। तो इसके बाद ही उन्होंने, उस लड़की ने जाकर केस किया कोर्ट में कि मेरी मम्मी ने और मेरे पापा ने मेरी मर्जी के खिलाफ विदाउट परमिशन, मुझसे इजाजत लिए बगैर दुनिया में मुझको जन्म क्यों दिया, मुझे इसका इंसाफ चाहिए। और मेरी प्यारी बच्चियों, ताज्जुब होगा कि न्यू जर्सी के जिस कोर्ट में उन्होंने केस फाइल किया था, वहां जो जजमेंट जज ने लिखा वो लड़की के हक में लिखा कि सही कह रही है, मां बाप ने अपनी मर्जी से इसको जन्म दिया, इसके परमिशन के बगैर जन्म दिया, अब इसका एज अगर 18 ईयर्स हो गया है और इसको अगर अलग मकान दे रहे हैं तो मंथली $5000 इसको खर्च के लिए देना पड़ेगा। मंथली $5000 खर्च देना पड़ेगा। मुझे ये वाकया नहीं सुनाना था, असल में मुझे ये सुनाना है कि एक वो जमाना था, एक इस्लाम का ये शिक्षा, ये एजुकेशन, और आज मॉडर्न जमाने का ये हाल है कि बच्चियां माँ बाप के ऊपर केस करती है और माँ बाप बच्चियों के 18 साल पूरा होने के बाद घर से निकाल देती है। मेरी प्यारी बच्चियों, एक स्टेप हुआ मां, दूसरा स्टेप है वाइफ, बीवी। अगर कोई लेडीज किसी की वाइफ है, बीवी है, तो इस्लाम में उसको क्या सम्मान मिलना चाहिए, क्या इज्जत मिलनी चाहिए? अल्लाह के प्यारे, बल्कि कुरान करीम में खुद अल्लाह ताला ने कहा वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि तुम अपनी वाइफ के साथ, तुम अपनी बीवी के साथ बिल्कुल खूब अच्छी से अच्छी जिंदगी गुजारो, बहुत बढ़िया सिस्टम से खुशहाल जिंदगी गुजारो, फ्रेंडली जिंदगी गुजारो। ये नहीं कि उसका मुंह उधर और उसका रूम उधर, तुम्हारा रूम इधर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको प्रैक्टिकल करके दिखलाया। चुनांचे हदीस की किताबों में आता है कि आपकी एक वाइफ थी जिनका नाम था हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। आप प्यार से, प्रेम से उनको या आइश कहते थे। नाम तो आयशा था, लेकिन बहुत प्यार से या आइश, यानी थोड़ा शॉर्ट करके, ताकि आयशा को खुशी हो। हदीस में आता है कभी कभी आप प्यार से, मोहब्बत से उनको हुमैरा कहा करते थे। और हुमैरा का मतलब है, जैसे आज की तारीख में किसी का नाम पिंकी रखा जाता है, रखते हैं ना, हुमैरा, अहमर, इसका माने रेड, लाल। रेड तो नाम नहीं रखते आमतौर पे, मेरी जानकारी के मुताबिक रेड से मिला जुला जो कलर है पिंक, तो प्यार से कोई अपनी बच्ची का नाम पिंकी रख देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वाइफ को भी प्यार से पुकारते थे या हुमैरा, यानी कि आज के शब्द में, आज के लैंग्वेज में गोया कि आप पिंकी कहकर पुकार रहे हैं। ये क्या है? ये प्यार है, ये मोहब्बत है, ये मेरी माएं, ये मेरी बहनें, ये मेरी बच्चियां किसी दूसरी दुनिया की मखलूक नहीं है, बल्कि वो भी इसी जमीन पर रहने के लिए आई। जितना हक मर्दों का है उतना ही हक इन औरतों का, इन बच्चियों का, माओं का, बहनों का है। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वाइफ के साथ एकदम फ्रेंडली रहा करते थे। बिल्कुल ऐसा नहीं जैसे आजकल की मां बहन भी कभी ऐसा करती है और कभी मर्द हजरात भी ऐसा कर लेते हैं। माओं का या बीवियों का हाल यह होता है कि एक एक बात की खबर लेगी। आपका सैलरी आ गया, इस मर्तबा कितनी सैलरी मिली,
अरे अकाउंट में तो इतना कम आया, बाकी कहां दे दिए, लगता है कोई आपका है ना। ये उनका हाल है। हमारा हाल ये होता है, हमारा हाल मतलब मर्दों का हाल ये होता है कि किचन में भी जाएगा और जाकर बर्तन को उठाकर देखेगा कि क्या पका है, चावल कितना स्टॉक में है, वो भी वही जाकर हिसाब करेगा और खबर रखेगा। यानी एक एक बारीक बारीक चीज पर निगाह रखना मेरे भाइयों, ये मर्दों का काम नहीं है, ये मर्दों का काम नहीं है। बल्कि ताज्जुब होगा, यहां हमारे कुछ टीचर्स हैं, अच्छे लोग हैं। मैं एक बात बताऊं, हदीस में आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी अजीबो गरीब हदीस है, सुन लीजिए, मजा आएगा। अगर कभी सुने हैं तो और याद आ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यगलिबनल करीम व यगलिबुहुन्नल लईम अना उहिब्बु अन अकूना करीमन मगलूबा। गौर से सुनिएगा, अगर मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है। आपने फरमाया कि लेडीज दो तरह की होती है और मर्द लोग भी दो तरह के होते हैं। कुछ मर्द, जेंट्स, हस्बैंड एकदम बहुत शरीफ लोग, बड़े इज्जतदार लोग होते हैं, और कुछ मर्द और जेंट्स बिल्कुल कमीना किस्म का होता है, घटिया किस्म का होता है। फिर आपने बतलाया, सुनो, आपने बतलाया कि जो आदमी इज्जतदार होता है, जो मर्द हस्बैंड इज्जत वाला होता है, शरीफ होता है, उसके घर में बीवियां, औरतें, यानी उनकी वाइफ के कंट्रोल में सब कुछ होता है। ध्यान से सुनिएगा, आज से 1400 साल पहले की बात मैं बतला रहा हूं, एकदम बिल्कुल आज के इस दौर में, इस युग में, कि जो हस्बैंड बिल्कुल शरीफ और इज्जत वाला होता है, उसके घर का कंट्रोल वाइफ के हाथ में होता है, पूरा कंट्रोल। और जो मर्द घटिया कमीना किस्म का होता है, उसके घर में वाइफ पावरलेस, कोई पावर नहीं। अगर वो कहे कि मुझे आज विशाल जाना है, आज बहुत ऑफर का मतलब मैसेज आया है, घर का कुछ सामान लेना है, आपको फुर्सत नहीं है, आप जाएंगे ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, तो मैं 1 घंटे के लिए जाकर कुछ सामान लेकर आ जाती। औरत को नहीं जाना चाहिए, लेडीज को विशाल नहीं जाना चाहिए, ये जमाना अच्छा नहीं है, एकदम पावरलेस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा अपने बारे में, मैं क्या चाहता हूं, अब असल सुनना है। आपने फरमाया, अना उहिब्बु अन अकूना करीमन मगलूबा, मैं ये चाहता हूं कि मैं इज्जतदार, शरीफ बनकर रहूं और मेरे घर के अंदर का पूरा कंट्रोल मेरी वाइफ के हाथ में रहे, घर का पूरा कंट्रोल मेरी वाइफ के हाथ में रहे। वो मुझको पर्ची बनाकर दे, या कभी मौका मिले तो वो पर्दे में रहकर या जैसे भी जाना चाहिए इस्लामी शरीयत के हिसाब से जाकर कुछ कर ले, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि घर के अंदर का कंट्रोल मेरे हाथ में रहे, मैं ये नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि उसके हाथ में रहे। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सब जानते हैं, ये थोड़ा लफ्ज या ये कहना अच्छा नहीं, लेकिन सारी औरतों का, सारी लेडीज का ये हाल है, इसलिए ये बहुत ज्यादा खराब भी नहीं। सब लड़कियों और औरतों का एक बीमारी का टाइम आता है हर महीने में, मंथली, वो सबको पता है। अब इस हालत में वो भी लेडीज है, वो भी मेंबर का और घर का वो भी एक पार्ट है, वो अगर बीमार हो गई है चंद दिनों के लिए, तो क्या उसको हम अपने रूम से निकाल कर और किसी और रूम में भेज दें? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में है और आपको एक मेट की चटाई की जरूरत पड़ गई,
तो आपने माँ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि जरा एक चटाई लाकर दे दो। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बीमारी के पीरियड से गुजर रही हूं, मैं कैसे लाऊं? तो आपने फरमाया कि आपका बदन चाहे किस पोजीशन में हो, लेकिन आप चटाई लाकर दे सकती है। आपका हाथ गंदा नहीं है, आपका शरीर गंदा नहीं है, आप मेरे लिए ये काम कर सकती हो। हालत यहां तक थी कि उस पीरियड के जमाने में मां आयशा कहती है कि मैं खाना खाती थी, कभी गोश्त मीट अगर घर में पकता था और हड्डी को मैं चूसती थी, हालांकि मैं पीरियड की हालत में रहती। मेरे हस्बैंड प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि ये हड्डी जिसको तुमने अपने होंठ से लिप से चूसा है, तुमने कहां चूसा, मुझको दिखाओ। और वहीं पर आप अपना होंठ रखकर चूसते थे। मेरी बच्चियों, ये क्या सिखाता है? ये सिर्फ और सिर्फ ये सिखाता है कि औरत भी इस दुनिया की मखलूक है और औरत को, लेडीज को भी उतनी ही इज्जत, मकाम, मर्तबा मिलना चाहिए जितना मर्द को और जेंट्स को मिलता है। एक मर्तबा का वाकया है, मैं बात शॉर्ट कर दूं, टाइम ज्यादा हो रहा है, आप लोगों का एक एक मिनट कीमती होता है। एक मर्तबा क्या हुआ, मां आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को खुश करना है, आ रहे हैं, देखा कोई नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वाइफ से कहा कि लोग तो मैच करते हैं, कंपटीशन करते हैं अलग अलग, ऐसा है कि यहां कोई नहीं है, फील्ड है, खेत पथार है, आज हम दोनों एक कंपटीशन कर लेते हैं, वाइफ और हस्बैंड। किस चीज का कंपटीशन? तो दौड़ने का कंपटीशन। चुनांच दोनों ने दौड़ लगाया, दोनों, मां आयशा भी दौड़ रही है और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दौड़ रहे हैं। मां आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बाजी ले गई, आगे चली गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रह गए। ये सब के सब सिर्फ ये बताने के लिए कि औरत को जो सम्मान और इज्जत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, दुनिया में और किसी ने ये इज्जत, ये मकाम नहीं दिया। आइए, तीसरा स्टेप होता है लड़की का, बच्ची का। और आप सबके सब जो हमारी स्टूडेंट है, ये सब किसी की लड़की है, किसी की बेटी है, किसी की बच्ची है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा आपके बारे में, बच्चियों के बारे में, लड़कियों के बारे में? एक दो हदीस में सुनाकर अपनी बात खत्म कर दूं। आपने कहा, मन कानत लहू उनसा, अगर किसी के घर में बेटी जन्म लेती है, बच्ची पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, आज हमारे समाज में क्या है, लड़का होगा तो 2-4 बकरा लाकर या और भी कोई जानवर खरीद कर और धूमधाम से अकीका करेगा, दावत करेगा, फ्रेंड को, जाने अनजाने को, सबको खिलाएगा। और अगर पहले से एक लड़की थी, फिर दूसरी लड़की ही दुनिया में आई, दूसरे नंबर पर लड़की ही पैदा हुई, तो अपने फ्रेंड को एक चॉकलेट भी खिलाने पर राजी नहीं होता। मेरी प्यारी बच्चियों, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, बच्चियां घर के लिए रहमत होती है, घर में माल दौलत के आने का जरिया होता है। बच्चियों की परवरिश और तरबियत लड़कों के मुकाबले में आसान है। बुढ़ापे में ये लड़कियां अपने माँ बाप का जितना सहारा बन सकती है, ये लड़के टाई टाई फिश फिश अंगूठा दिखाता है और चला जाता है। आम तौर पर ऐसा होता है, आम तौर पर ऐसा होता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लड़कियों के बारे में क्या कहा, मन कानत लहू उनसा, अगर किसी के घर में बच्ची जन्म लेती है तो 3 काम कर लो। फलम यइदहा, चूंकि उस जमाने में बच्ची जन्म लेने के बाद उसके पापा, उसके अब्बा कहीं खेत पथार में ले जाकर और गड्ढा करते थे और उसमें जिंदा डाल देते थे। जर्रा बराबर रहम नहीं आता था कि क्या किसी जिंदा इंसान को इस तरह से कब्र में, इस तरह से गड्ढे में डाला जा सकता है?
हम और आप सोच नहीं सकते। इसलिए आपने फरमाया अगर लड़की जन्म लेती है, नंबर 1 उसको जिंदा दफन मत करो, उसकी भी परवरिश लालन पोषण करो जैसे तुम अपने लड़के की लालन पोषण और तरबियत करते हो। फलम यइदहा वलम युहिनहा, लड़की कम मतलब लड़की का वैल्यू कम और लड़का का वैल्यू ज्यादा, ऐसी सोच और ऐसी थिंकिंग मत रखो। फलम युहिनहा, लड़की है बीमार पड़ जाए, अरे इलाज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये तो बाद में किसी के घर में चली जाएगी, ये तो चंद सालों के लिए मेरे घर में है, 18, 20, 22 साल के बाद ये किसी और की हो जाएगी, बीमार पड़ी है आहिस्ते आहिस्ते सही हो जाएगा, छोड़ो इलाज क्या जरूरी है, ऐसा मत करो। फलम युहिनहा वलम युसिर वलदहु अलैहा, और लड़की है तो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और लड़का है तो उसको बिल्कुल हाई फाई सबसे अच्छा स्कूल कॉलेज जो है, सबसे ज्यादा फीस और पैसे देकर जहां पढ़ाया जा सकता है, वो मेरा बेटा है, वो मेरा लड़का है, वो मेरा लाल है, वो मेरी शान है, उसको जहां तक हो सकता है पढ़ाएंगे और बच्ची की पढ़ाई पर एक पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं। ईद का मौका आएगा, अपने लड़के को 5,000 का सूट ला कर देगा और वही लड़की घर में है, उसको 1,000 का भी कपड़ा देने में बार बार सोचता है। अब ऐसा आमतौर पे नहीं होता है, लेकिन आपने आज से 1400 साल पहले कह दिया वलम युसिर वलदहु अलैहा, के अपने लड़के को ऊपर, अपने लड़के के लिए सब चीज का सुविधा और फैसिलिटी, और लड़की को बिल्कुल नीचे, उसके लिए कुछ नहीं, ऐसा मत करो। अगर ये 3 काम कर लोगे अदखलहुल्लाहुल जन्ना, अल्लाह उसको सीधा जन्नत में, स्वर्ग में पहुंचाएगा, सीधा स्वर्ग में जन्नत में पहुंचाएगा। बोलो सब सुभान अल्लाह। मेरी प्यारी बच्चियों, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रोफेट मोहम्मद ने लड़की के बारे में, अगर किसी के घर में 2 लड़की है, 2 बच्ची है, आपने फरमाया मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा फहुवा व अना फिल जन्नति कहातैन। अगर किसी के घर में 2 लड़की है, 2 बेटी है, अल्लाह ने दिया 2 बेटी दिया और दोनों का बढ़िया से लालन पोषण तरबियत किया, अच्छा से खाना खिलाया और जिस चीज की भी जरूरत पड़ी हर चीज का ख्याल रखा, यहां तक के वो अपनी शादी के उम्र को पहुंच गई, अच्छा सा निकाह शादी जहां भी करा सकते हैं करा दिया, यानी कभी भी लड़की की वजह से अपना दिल और अपना मन छोटा नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रोफेट मोहम्मद ने क्या कहा, सुन लो, सुन लो। कहा कि वो आदमी, वो माँ बाप, वो पेरेंट जिन्होंने अपनी दोनों लड़कियों के अच्छे एजुकेशन का इंतजाम किया, अच्छा खाना पीना, अच्छा कपड़ा, अच्छा ड्रेस, अच्छा रहना सहना, सब चीज का इंतजाम किया, तो वो और मैं यानी प्रोफेट मोहम्मद साहब जन्नत में इस तरह से होंगे, इस तरह से। इसका मतलब क्या है कि बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा, बीच में कोई तीसरे की गुंजाइश नहीं, बल्कि वो माँ बाप की ये जन्नत होगी और मेरी ये जन्नत होगी, मेरी ये जन्नत होगी। मेरी प्यारी बच्चियों, मैंने तो सिर्फ एक बात को नबी और प्रोफेट मोहम्मद की सीरत से, सिर्फ एक बात को, और वो भी बहुत शॉर्ट करके बतलाया कि प्रोफेट मोहम्मद का औरतों पर, लड़कियों पर, बच्चियों पर क्या एहसान है। आप पूरी दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए रहमत बनकर आए, लेकिन लड़कियों पर आपका क्या करम है, आपने लड़कियों के लिए दुनिया वालों को क्या बताया और आपने क्या किया। आपकी एक लड़की थी हजरत फातिमा, हजरत फातिमा, आप कहते थे कि फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। क्या कहते थे? फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। इसलिए मेरी प्यारी बच्चियों, ये जो 12 रबीउल अव्वल जब भी आए, ये कोई जरूरी नहीं कि इसी मौके पर हम प्रोफेट मोहम्मद के लाइफ को सुने और समझने की कोशिश करें, बल्कि बीच बीच में जब भी आप चूंकि अभी पढ़ाई के लाइफ से और पढ़ाई की जिंदगी से गुजर रही है, आपके पास टाइम नहीं है,
لیکن بہرحال جب بھی آپ کو موقع ملے سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھیے. اور صرف مسلمان نہیں، ایک کتاب میں بتلا کر جاتا ہوں، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، دا 100. مائیکل ہارٹ ایک کرسچن، ایک عیسائی کرسچن رائٹر، انہوں نے پورے ورلڈ کے 100 مہان ویکتی اور انسان کو بالکل سیریل سے اس کتاب میں لکھا ہے. اور اس کرسچن نے محمد یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 نمبر پہ رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے، دنیا والوں کو اچھا سکھا دینے کے لیے اور اچھا راستہ بتانے کے لیے آئے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی اور یہ جو پوری دنیا کے نبی ان سے پوری محبت کرنے کی اور ان کی ہر باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آپ لوگوں نے سنا، بہت دھیان سے سنا. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا. بہت بہت شکریہ.